Hello, children. Welcome back to Extra Class with Aaron Mandal. Children, today we are study your lesson number 12, Agreement of Subject and Verbs from your book Collins English Grammar and Compositions. And this is the lesson of class 6. Okay. Already I uploaded the video of two lecture up to 11th chapter. You can check it from the playlist. Okay. And this is 12th number chapter. One by one, all the chapters I am going to upload very soon. You just keep commenting and subscribe the channel, like the video. It is always motivating me because of your appreciations and how you like the video. Don't forget to mention in comment box if you're having any kind of any doubt or queries or any kind of anything, want to ask anything, please mention in comment box. I feel very happy to replying you. राइट सो हम लोग अभी बात करेंगे एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब चैप्टर नंबर 12. सो होप यू ऑल आर वेल. स्टार्ट द चैप्टर. Agreement of subject and verb. Subject I hope you all know already. In earlier classes we discuss what is subject. Subject is doer of the action in any sentence, and जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो subject होता है. Verb is doing words, action words. Read these two sentences, underline the subject and verb in each sentences. इसको पढ़ना है और underline करनी है. The bus we take to school in red in color and has yellow stripes. The bus we take to school. And is आपका क्या है, verb है. Okay. Next sentence, the elves are frightening the dwarves of to gain control of the mines. So the elves, underline, are frightening आपका क्या है, verb है. Okay. Now move to next. हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब होता क्या है. It is very simple and require the basic knowledge in grammar if you are forming a sentence or saying something. If you want to speak well in English language, so you also have to pay attention about subject verb. If the subject is singular, verb also will be singular, like this. In the sentences, the verb must agree with the subject in number or person. It is called agreement of subject and verb, जैसे मैंने आपको बताया. For example, in a sentence, if the subject is singular, so verb also will be singular. For example, Rishi is going to a trip to the Himalayas. What is subject? Subject is Rishi. Rishi के बारे में बात कर रहे हैं. And Rishi is singular or plural? Only one. So it is singular. Verb also will be singular. Is. Okay. If we wrote Rishi are, so it is wrong sentence. Next, Karim and Mohan are opening batsmen of our team. Karim and Mohan, it is plural subject. Subject plural है, इसलिए आपका verb जो are है वो भी plural है. Right. Move. Agreement in number and person. हम लोग बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है. राइट. जहाँ हर एक वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मैं कोशिश करता हूँ एक्सरसाइज सॉल्व करने की और साथ साथ डिस्कस भी करते रहता हूँ. राइट. एक्सरसाइज में भी आपको बताता हूँ आंसर ऐसा क्यों है विथ वैलिड रीज़न. एग्रीमेंट इन नंबर एंड पर्सन. The subject and verb in sentence must agree in number. If the means singular, then verb also will be singular. A cat sleeps on the porch. A cat singular, sleeps also singular, right? If the verb is sleep, S-L-E-E-P, sleep, then it is plural. In case of verb, sleeps, S-L-E-E-P-S, if you put S at the end of the word, then it is singular. ये singular है. In case of noun, नाउन की अगर बात करें, कैट, CAT, कैट, इट इज़ सिंगुलर. बट अगर हम लोग इसमें एस लगा लें, ऐड कर लें, देन इट इज़ प्लूरल. बट हेयर इट इज़ ऑपोजिट. आपको हमेशा ध्यान रखना, वर्ब के साथ ऐसा नहीं होता. अगर हम लोग एस इसमें लगा लें सो सिंगुलर हो जाती है, और जो ओरिजिनल फॉर्म है वो प्लूरल ही है. वर्ब मस्ट ऑल्सो एग्री विद द सब्जेक्ट इन अ पर्सन. वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए विथ पर्सन.
आई एम वेल, राइट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इट इज़ फर्स्ट पर्सन, राइट। So I am, not I are, right? This is like you are, not you am. Okay. So इस तरह से आपको ध्यान देना है, पढ़ लेना आप जो भी एग्जांपल्स दिया हुआ है कुछ। वर्ब एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए सब्जेक्ट, अगर वर्ब्स डिस्टेंस से नियर बाय मीनिंग नहीं बन पा रहे तब हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। In such sentences, verb also agree with the subject and does not noun or pronoun closer to it. Then how we form the sentence? For example, my friend, including Priyanka, the tall girl with short hair, and Garima, the short girl with curly hair, suddenly entered the room. Right? So, suddenly enter the room. Here the subject friend is plural form. सब्जेक्ट जो है फ्रेंड से प्लूरल फॉर्म है, लेकिन वर्ब एंटर ऑल्सो इट इज़ इन प्लूरल फॉर्म। वर्ब क्या है, एंटर है, राइट। माई फ्रेंड प्रियंका एंड गरिमा, प्रियंका के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है, उसके डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है, हाउ प्रियंका इज टॉल एंड शॉर्ट हेयर, गरिमा शॉर्ट एंड कर्ली हेयर आर एंटर इन द रूम। जैसे मैंने आपको बताया एंटर, इसमें एस नहीं है, सो इट इज़ सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, ओके। एंड सब्जेक्ट भी प्लूरल है इसीलिए। लाइक द मैन हु ओन्स द विलास एंड अपार्टमेंट्स इन साउथ बेंगलोर हैज़ कॉल्ड द मैन, ओनली सिंगल मैन, राइट। अपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर सब्जेक्ट मैन की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ सिंगुलर हैज़, ओके, नॉट प्लूरल। सो इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्टिंग विद देयर और हेयर, जो सेंटेंस देयर या हेयर से स्टार्ट होती है, देयर इज नो टेबल इन दिस हॉल, राइट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बात करेंगे, भव के बाद क्या सब्जेक्ट है। देयर इज नो टेबल, हेयर आर द बुक्स, इस बुक्स को देखने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे हेयर आर द बुक्स, हेयर इज द बुक। अगर इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होता, बुक होता, then we can write is, there is a book or here is a book. Singular subject always join using and, okay, singular subject. Lalit and Freet are friend, she and I were hungry, okay। So this is complete, move to next। compound subject joined by और, आप पढ़ लेना इसको, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा। सेंटेंसेस ईच अदर नेदर एवरी वन नो वन, अगर इसमें सेंटेंसेस होता तो हम लोग इसको क्या यूज़ करेंगे। ईच नेदर आर यूज्ड इन ए सेंटेंस, द वर्ब टेक प्लेस सिंगुलर फॉर्म, राइट। ईच ऑफ द चिल्ड्रन इज रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन हालांकि प्लूरल है, राइट। चाइल्ड मीन्स सिंगुलर, चिल्ड्रन मीन्स प्लूरल, मोर देन वन चाइल्ड। सो ईच ऑफ द चिल्ड्रन इज रिक्वायर्ड टू बीइंग देयर ऑन पेपर ईच, हर एक बच्चे, एक एक बच्चे के, पर्टिकुलर बच्चे की बात करें, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ईच है और वर्ब इज है। एदर कलर इज फाइन विथ मी, राइट। एदर एक ही चीज़ के बारे में, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू, वी आर यूजिंग सिंगल पर्सन, हालांकि सबके बारे में बात करें, इंगित कर रहे हैं, लेकिन हर एक की काउंटिंग कर रहे हैं वन बाय वन, दैट्स वाई इट इज। सो इस तरह के कोई भी वर्ड्स आए सेंटेंस में, आपको सिंगुलर सब वर्ब ही यूज़ करना है। अगर इसमें आपका आता है एदर नेदर नोर, देन व्हाट यू हैव टू यूज़, राइट। सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करेंगे जो भी सब्जेक्ट के क्लोजर हो। एदर माई ब्रदर और माई सिस्टर आर चूजिंग माई शर्ट, हालांकि मेरी मदर और सिस्टर्स में से कोई भी ये शर्ट चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको देखना, ध्यान देने की बात है, माई एदर माई मदर, मदर इज सिंगुलर, बट और माई सिस्टर्स, मोर देन वन, सिस्टर्स प्लूरल, दैट्स व्हाई इट इज आर। हेयर एदर माई सिस्टर्स और माई मदर इज चूजिंग माई शर्ट, यहाँ पर अगर सिस्टर की जगह मदर और मदर की जगह सिस्टर होती तब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते थे, क्योंकि मदर क्या है, सिंगुलर है यहाँ पर। सो इस तरह से आपको ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट सेंटेंसेस विथ मच एंड लिटिल, अगर मच और लिटिल है तो आपको क्या यूज़ करना। मच एंड लिटिल आर यूज्ड विदाउट काउंटेबल
with countable uncountable noun, and in a sentence they take singular verb. Much money has been spent trying to repair a fan. Only a little of the food has been eaten. Uncountable noun, the thing which we are not able to count, that these are known as uncountable noun. And you know that uncountable noun it is not plural, so इसलिए हम लोग इसमें singular verb ही use करेंगे. Sentence with many and few. Words are many and few take place always plural verb. Many मतलब बहुत सारे, few मतलब एक से ज़्यादा. That's why many of my friends are waiting, right? A few of my friends have, दोनों प्लूरल है. कलेक्टिव नाउन्स में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे, राइट. कलेक्टिव है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स वी आर कंसिडरिंग एज वन, राइट, नॉट ऑल. दैट्स वाई इट इज कलेक्टिव नाउन. लाइक a group of sings really well. हालांकि नाउन पर भी डिपेंड करती है, कभी कभी सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी. ए ग्रुप, द ग्रुप मेंबर्स हैव, मेंबर्स है, दैट्स वाई इट इज हैव. मूव टू नेक्स्ट. नेम विच लुक प्लूरल. कुछ नाम जो है प्लूरल की तरह दिखता है, लेकिन प्लूरल होता है या नहीं होता देखते हैं. लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स, but it is name of one country only, so that's it, that's why it is. The United Nations, nations ऐसे, right, plural दिख रही है लेकिन singular ही use होगा. The Three Musketeers is a classic, right. Next, a part. Fill in the blanks with suitable form of the verb given in the brackets. The crowd is going wild. See, collective noun, okay. A few of books plural है, so are. नंबर थर्ड में क्या है देखते हैं. ओनली a little cake, only a little cake, only a little cake, not cakes, okay, cake, so it is. Next, fourth number, other song, not song, so it is. Next, other Susmita or council डैश रॉन्ग. एदर सुस्मिता, एदर है इसमें, तो आपको हम याद रखना इज यूज़ होगा. नंबर 6, देयर डैश नो कैंडीज लेफ्ट इन द बैग. देयर कैंडीज, बहुत सारे कैंडीज की बात करें, देयर आर, ओके. नेक्स्ट, द कैप्टन विद द टीम, द कैप्टन विद द टीम, पूरी कैप्टन की बात करें, सो वर्किंग इन टू द स्टेडियम. कैप्टन अपने टीम के साथ जा रहा है. with teams, only one team, okay, so it is. Number 8, everybody in our school dash him, so singular or plural, children, so this is singular, likes, okay, children. Number 9, the boy or his friends dash knocking on the door. The little boy singular है, और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है. एंड वर्ब हम लोग प्लूरल ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है, नियर बाई सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, फ्रेंड्स, दैट्स वाई इट इज़ आर. नंबर 10, माई कजिन एंड आई डैश वेटिंग टू गो आउटसाइड. आई आर, ऑलवेज कीप इन माइंड, देयर टू माई कजिन एंड आई, दोनों जा रहे साथ में. So this is complete your A part. This lesson, this part of the video is ending here, and the second part is going to upload very soon. Till then, see you again in next part of the video, part 2. Okay, till then be happy. Thank you.